So, good evening and welcome all of you to this wonderful divine session today. So, welcome all of you, divine souls. You know, it is said that hearing Bhagavad Gita live washes away lots of our negative karma, lots of our sins, our past karmas. हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि भगवद गीता के श्रवण मात्र से ही जीवन के समस्त पाप दुखों का नाश हो जाता है। हमारे बहुत सारे नकारात्मक कर्म और पाप सब धुल जाते हैं। और भगवद गीता का पाठ जहां कहीं भी हो रहा हो, भगवत कथा जहां कहीं भी हो रही हो, भगवान स्वयं वहां विराजमान होते हैं, साक्षात विराजमान होते हैं। सो ऐसे ही अमृतमयी कथा, ये आनंदमयी कथा भगवान की भगवद गीता का कथन है कि हम सब मूलतः एक ही चेतना है। सो मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, जो जगत गुरु है, जो इस पूरी सृष्टि के गुरु है, रचयिता है, कि हम सभी को कृपा करें, हम सभी को दिव्य ज्ञान प्राप्त करें। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। So we open our today's session by paying our salutations to our gratitude in the lotus field of Lord Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ये प्रार्थना समर्पित है। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। So today we will be continuing our journey through Bhagavad Gita chapter 2, shloka number 25. So do you know how to become a conscious creator? How to step into creator's consciousness? So if you can move into that creator consciousness, even for a fraction of a second in your lifetime, you can manifest anything you want in your life. यदि केवल एक सेकंड के भी, एक छोटे से अंश के लिए, उस मात्र के उतने समय के लिए भी आप अपनी चेतना को उस परम चेतना में एकीकार कर सकें, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे साक्षात प्रकट कर सकते हैं। The real truth is that you are the same consciousness. You are the creator. But in the vortex of Maya, you forget that truth, that ultimate truth you forget. And you start considering yourself to be separate from everyone else. भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अगले श्लोक नंबर 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतना, कॉन्शियसनेस के सार के बारे में बताते हैं। the reality about consciousness, आत्मा का जो स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद, उस सार के बारे में बताते हैं। केवल यही एक ज्ञान आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। So भगवान श्री कृष्ण explains to Arjun about the essence of consciousness. So, but before we start, kindly allow me to pay my gratitude to my Guru. Om Ram Shri Kanhaiya Lal Sharmaye Namaha.
Om Shri Guruve Namaha. Bhagwaan Shri Krishna says, Avyakto yam chintayo yam avikaryo yam uchyate tasmadevam viditto vainam nanu shochir tum arhasi. You know, I am means this soul is avyakt. Avyakt means unmanifest because it is so called. That is why it is called invisible. Achintyo. Achintyo means it is inconceivable. And avikarye means unchangeable. इसमें कोई विकार नहीं आ सकता. So knowing this, he tells Arjun, when you know these qualities of the soul, you should not grieve for this body. Let this body die. So the soul or our self, he says this is unmanifest. So you cannot perceive it. This is not an object of perception. It cannot be perceived by any of the senses. Therefore it is called unmanifest, avyakt. आत्मा जो है अनुभूति की वस्तु नहीं है. उसे आप इसे आप अपनी 10 इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय से उसे अनुभव नहीं कर सकते. इसलिए ये अव्यक्त है. अब आप बोलोगे, प्रश्न उठता है कि आत्मा को इंद्रियों से क्यों नहीं अनुभव कर सकते? हम हर चीज इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तो आत्मा को क्यों नहीं अनुभव कर सकते? हम इस शरीर को अनुभव करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को, सबको अनुभव करते हैं, पर आत्मा को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? अब आप सोचिए क्यों. अब the mind, it can think only about an object which can be perceived by your senses. Now, perception by the senses is very limited. For example, you can see only a very limited range of color, in the electromagnetic spectrum of light. आपने physics पढ़ी होगी अपने science के subjects में. So there is an electromagnetic spectrum, and which is very, very wide. But you are able to see only a very small portion of that spectrum, starting from the color violet, ranging up to the color red, which is called Vibgyor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. But can you see infrared? Can you see the spectrum or the color beyond infrared? Can you see ultraviolet color? What is that ultraviolet color of that spectrum, of that frequency? Or can you see beyond that? No. Similarly, your ears, they can hear only a small, range of sound. Below some range, your ears cannot hear anything. Above that range, your ears cannot hear anything. So all your senses have a very limited perception. But your soul or your Atma is part of that infinite consciousness. So how can you perceive infinity through the limited senses? Therefore, since the soul or the self cannot be perceived by the senses, it is unthinkable. It is beyond comprehension of the mind. It is beyond mind. And as the self is infinite and it is without any form, it cannot undergo any change. That is why it is changeless or immutable. Since the soul is subtler than the material energy, वो सूक्ष्म है. That is why it is not even perceptible by our mind, by our intellect. क्योंकि वो उनसे भी सूक्ष्म है. कठोपनिषद कहता है
कठोपनिषद से इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा। इंद्रियों, द कंसेप्ट इज, जो हमारी इंद्रियां हैं, दशों इंद्रियां, इंद्रियों से परे विषय है, इंद्रियों के विषय, और इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म है मन। सो माइंड इज मोर सटलर देन आवर इंद्रिया, और मन से परे है बुद्धि, योर इंटेलेक्ट। बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। क्योंकि आत्मा जो है वो बुद्धि से भी परे है, इसलिए उसे बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते। बुद्धि से यू कैन नॉट फील दैट। बियॉन्ड द सेंसेस आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, एंड सटलर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस आर द माइंड, एंड बियॉन्ड द माइंड इज इंटेलेक्ट, एंड बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज अवर सोल और आत्मा. So that is why it cannot be sensed by the intellect. This is the law of physics. आप जो है सूक्ष्म चेतना से स्थूल को तो अनुभव कर सकते हैं, पर स्थूल चेतना, स्थूल तत्व के द्वारा आप सूक्ष्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकते. दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स. अब यहां सबसे स्थूल तत्व क्या है? सबसे स्थूल है ये 5 महाभूत, ये 5 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर, अर्थ. ये 5 महाभूत सबसे स्थूल हैं, और हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है. हम और फिर तो ये स्थूल शरीर इसीलिए बोलते हैं. और हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जो हमारे प्राणमय कोश, ये तो हमारा अन्नमय कोश हो गया, इससे सूक्ष्म हुआ हमारा प्राणमय कोश. तो इंद्रियों के जो विषय हैं वो प्राणमय कोश का हिस्सा है, वो 5 तत्वों से भी सूक्ष्म है. और उससे भी सूक्ष्म है मानस. मानस, our mind, which is the controller of all the 10 इंद्रियाज, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, उनका कंट्रोलर है. और मानस से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा. इसलिए चूंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म है, तो आत्मा तो स्थूल का अनुभव कर सकती है, आत्मा इस शरीर का अनुभव कर सकती है, पर ये शरीर वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है. सो उस आत्मा की अनुभूति हमारी इंद्रियों के द्वारा संभव ही नहीं है. नाउ some people might wonder कि भगवान श्री कृष्ण says soul is अव्यक्त. एक और भी मतलब है अव्यक्त का, unmanifested. अव्यक्त को कुछ लोग बोलते हैं कि unmanifest. लेकिन some people say भाई soul तो is already manifest in your body. Each and every person, there is a soul inside. So soul is already manifested in the individual. So why does Bhagwan Shri Krishna say that soul is avyakt or unmanifest? But in actual sense, we find that soul is actually in everybody's body, it is manifest. So some people say this is a metaphysical controversy, कि ये कुछ आध्यात्मिक विवाद तो नहीं है, या आध्यात्मिक विवाद है. भगवान कुछ कहते हैं और हमारी समझ में कुछ और आ रहा है. हाउ कैन सोल बी अनमैनिफेस्ट व्हेन इट इज मैनिफेस्टेड इन द बॉडी ऑफ एवरी इंडिविजुअल? आत्मा अव्यक्त कैसे हो सकती है, जबकि आत्मा तो वो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में व्यक्त है. अब ये तो विरोधाभास हो गया. विरोधाभास हुआ ना. आत्मा को अव्यक्त कहा गया, लेकिन आत्मा तो प्रत्येक शरीर में व्याप्त है. नाउ इस विरोधाभास को, दिस पैराडॉक्स कैन बी एक्सप्लेन बाय गोइंग अ लिटिल बिट डीपर. हम लोग थोड़ा और वील गो अ लिटिल बिट डीपर बाय एनालाइजिंग द ड्रीम स्टेट. स्वप्न अवस्था के माध्यम से हम इसको जांच करेंगे.
Actually, the soul dreams the existence of this body. इसका तात्पर्य क्या हुआ? सोचिए, इसका तात्पर्य यह है कि जो ये शरीर है वो आत्मा की स्वप्न अवस्था है. The soul dreams the existence of this body. शरीर को आत्मबोध नहीं होता, अभी आपने देखा, परंतु आत्मा को शरीर का बोध है. बिकॉज आत्मा इज सूक्ष्म, शरीर स्थूल है. द बॉडी इज नॉट कॉन्शियस ऑफ द सोल, बट द सोल इज अवेयर ऑफ द बॉडी. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीक्रेट आपको बताता हूं. द ड्रीम प्रोजेक्शन ऑफ द सोल इज व्हाट? द प्रोजेक्शन. आप स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में कुछ हम प्रोजेक्शन देखते हैं, उसी तरह से आत्मा का ड्रीम प्रोजेक्शन क्या है स्वप्न में? दैट इज आवर आई, आवर अहंकार, आवर ईगो सेंस. अहंकार क्या है? वो केवल मात्र आत्मा का स्वप्न प्रक्षेपण है. दैट ड्रीम प्रोजेक्शन ऑफ द सोल, दैट इज अहंकार, दैट इज द आईनेस. अहंकार उस स्वप्न का विषय है. ईगो इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ड्रीम. उस ड्रीम का जो सब्जेक्ट है, दैट इज ईगो. सो द ईगो कॉन्शियसनेस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द ईगो कॉन्शियसनेस इज व्हाट थिंक्स. कौन सोचता है? दैट इज अवर ईगो कॉन्शियसनेस. एंड that ego consciousness uses its powers of sensation. कौन अनुभव करता है? And to know and relate to the dream of this material creation, ये अनुभव जो कर रहा है. So thought and sensations, they are not part of the soul, but are the experience of the ego consciousness in the dream state of the soul. So इस प्रकार जो विचार और संवेदनाएं हैं, हमारी विचार हैं, वो आत्मा का हिस्सा नहीं है, बल्कि स्वप्न अवस्था में अहंकार की चेतना का अनुभव है. अब यहां तीन चीजें हैं. पहला, विचार. एक विचार आया, और दूसरा, कौन विचार कर रहा है. पहला तो विचार है, दूसरा कौन विचार कर रहा है, द वन हु इज डूइंग द थिंकिंग. और तीसरा, जो विचार का विषय है, जिस बारे में विचार हो रहा है, द ऑब्जेक्ट अबाउट विच ही इज थिंकिंग. सो थिंकिंग इन्वॉल्व्स थ्री कंपोनेंट्स: द सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, द ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, एंड द थिंकिंग प्रोसेस इटसेल्फ. See, one knows he exists because of this confirmation of his thoughts and feelings. When you are thinking and feeling, you know that you are existing. But tell me, what happens to a person who is in deep sleep? When you are in deep sleep, a person who is in absolute calmness, in which there is neither thought nor feeling. And he is not unconscious also, which means he is not without consciousness. He is not non-existent at that time, but this existence is without the consciousness of the ego and without the thought that I exist. This moment of truth, even if it is there for a fraction of a second, that is called intuition. And your thoughts and sensations are like searchlights. They throw their rays in front of the material object. So based on the thoughts and sensations, you are able to perceive the material object, but they cannot reveal the soul behind them. कौन देख रहा है? But intuition is like a spherical light, with rays on all the sides. And then the intuition reveals the soul. Intuition is the bridge between
the soul and the ego's thoughts and sensations. So if one can remain unidentified with thoughts and sensations and without being unconscious, he will know the true nature of the soul through intuition. इसलिए कहते हैं ना, दृष्टा भाव रखना है. Be watchful. Watch your thoughts. कौन देख रहा है? Who is watching the thoughts? If you are just able to see that, experience that, dashta bhav. No, Sankhya Yoga calls this state as samadhi. Tada drashtu swarupe vasthanam. Maharshi Patanjali says, tada means then. Drashtu means the seer, the witness. Now, who is witnessing? That is your pure awareness, that consciousness. Swarupe, Swarup, Swarup means your own essence. Avasthana means the state of abiding. Then it says, it means then the pure awareness, or that consciousness can abide in its own nature. Tada means then. Then when? You will ask, what is meant by then? Then when? When does it happen? It happens when the vrittis of the chitta are regulated. Yogascha chitti vritti nirodha. Maharshi Patanjali says, when your mind field has reached the state of nirodha, when there is control or regulation of your chitta through the dissolution of all the three gunas, sato, rajo, tamo guna, when the mind field has no objects, it is then, tada, it is then that the seer, the spiritual self, that consciousness rests in its own true nature. So this spiritual self, which is the Chitti Shakti, or we say it Ma Kundalini, or consciousness potentia, then dwells in our own nature. The seer rests in its own self. This is the resting of consciousness in its own self. And in this state, the knowing process no longer exists. It becomes a part of being. You don't need to know. It is just being. Just be. This is the meaning of Sat Chit Anand. Satchidanand means existence, consciousness, and bliss. See, this word is a compound of three words. Sat, which is the ultimate being, the truth. Chit is pure consciousness. And Anand is perfect bliss. So then reality, which is perfect bliss, is actual reality. When seen through the realization of Brahm, when you realize you are Brahm. This is the state of God consciousness or self-realization. Amar Atma Satchidanand mein hoon. Shivoham, 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 Shivoham. Amar Atma Satchidanand mein hoon. When the yogi perceives the soul as made in the same image of the spirit, he knows himself to be unchangeable, unmanifested, ever calm, avyakt, like the spirit. This is how you realize the true nature of the soul. This purpose of this life on this earth is to attain the right knowledge, to understand this innate quality of the soul, and to discover our own true self. Knowing our true self is called enlightenment. The people who know these truths, they are called rishis, Brahm rishis. The truth is that we are all essentially the part of that
one supreme reality called Parabrahma. And only those who have this true knowledge, they are able to design an extraordinary life for themselves, a life of true bliss. So इसके साथ ही प्रभु से अनुमति चाहता हूं कि इस प्रसंग को यहीं विराम लगाने को, फिर अगले शनिवार पुनः श्री चरणों में भगवत कथा का अमृतपान करने की इच्छा लेकर मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। ओम वासुदेवाय। So thank you all of you for being part of this blessed journey together. ईश्वर की कृपा हम साथ में लिया। और अब किसी का कोई प्रश्न हो तो I am ready to take any question. Thank you, Veena Raj-ji. I'm so grateful to you. Yes, please, Manish ji, मनीष मिश्रा जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। मनीष जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। मनीष जी कहाँ गए? जी मनीष जी। जी प्रणाम सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष जी, अगर आप बोल रहे हैं तो। जी प्रणाम सर। आ रही सर अभी आवाज? एक मिनट आप प्लीज आप बोलने की कोशिश करें। जी प्रणाम सर। प्रणाम मनीष जी। सर ये मेरा अपना एक पर्सनल क्वेश्चन था जो मुझे कुछ दिनों से एक अनुभूति सी हो रही है जी। उसके संबंध में मैं आपसे मतलब एज अ गुरु या कुछ भी समझ लीजिए, एक गाइडेंस के तौर पे आपसे कुछ मतलब पूछना चाहता हूँ। अवश्य। क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे बराबर ये अनुभूति होती रहती है कि मैं कौन हूँ और किस लिए इस संसार में जो है वो आया हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मनीष हूँ? और अगर मैं शरीर हूँ तो क्यों हूँ? और मेरे अंदर जो है तो मतलब जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या मैं खुद कर रहा हूँ या कोई शक्ति है जो मुझे ये सब करवा रही है? और अचानक रात में भी नींद खुल जाती है तो काफ़ी घबराहट सी होने लगती है कि मैं कौन हूँ, इस टाइप का मतलब अंदर ही अंदर पूरा एक तरीके से जो चलता रहता है। और रात में मैं उठ के मतलब जब कभी इस तरीके से लगता है तो जब भी उठता हूँ रात में 3 बजे या 2 बजे या 4 बजे तो फिर मैं साइलेंट में मतलब बैठ जाता हूँ। तो यही और काम में भी जब मैं जाता हूँ, मैं एक सीमेंट प्लांट में जॉब करता हूँ एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। तो उस समय भी मेरे मन में मतलब अपना जो कर्म है वो तो करना है, जिस तरीके से भगवान ने बोला है कि वर्क इज वर्शिप, वो करना है, अपनी जिम्मेदारी है जो भी। लेकिन बार बार ये अनुभूति होती रहती काम करते समय में कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो ये जो उलझन है इसके संबंध में मतलब मैं क्या करूँ, ये जो हो रहा है मेरे साथ इस तरीके की अनुभूति। कहीं पर किसी उसमें मनीष जी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। एक तो अगर हम मैं यहाँ थोड़ा सा समय आपका चाहूंगा। जी जरूर। आप अपने उस बारे में और जानना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी है कि मैं हूँ क्या एक्चुअली, मैं क्या हूँ, कौन सी शक्ति मेरे पे ऊपर से काम कर रही है, मैं अंदर में क्या हूँ। तो सबसे पहला बात, हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन, हम हैं क्या। तो इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने और हमारे सांख्य योग में भी तमाम हमारे सभी शास्त्रों में कह लीजिए
बड़े अच्छे से दिया हुआ, बहुत ही क्लियर। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा, महाभूत अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में विचार पंचचेंद्रिय गोचरा, ये श्लोक का वो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, उन्होंने बताया कि हम जो ये इस जन्म में हम इस जगत को अनुभव कर रहे हैं, ये मेरी शरीर, मेरा बॉडी, माइंड, सोल, आत्मा, ये सब मिला के जो वट एवर इज दिस स्ट्रक्चर विच इज experiencing this world is comprising of 24 elements। बड़ा क्लियर है। सांख्य योग में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, और ये तमाम आपको वेदों पुराणों में भी मिल जाएगा इसकी अभिव्यक्ति, और ये सत्य है क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी इसका जिक्र किया। तो अगर हम देखें हमारा स्वरूप क्या है, ये 24 एलिमेंट्स क्या है, सबसे नीचे जो है वो हमारा पंच महाभूत, हमने अभी आज के उसमें भी पंच महाभूत का जिक्र किया। 5 एलिमेंट सबसे स्थूल हैं ये, तो चूंकि हम देख सकते हैं उनको, ये मटेरियल है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश। ये 5 तत्वों का ये शरीर, ये तो आपको भी पता है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद पंच तन मात्राएं, इंद्रियों के विषय, वो हमारा प्राणमय शरीर। आपका हार्ट बीट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपने कभी सोचा? हमारा हृदय चल रहा है, हमारा खून नसों में दौड़ रहा है, हमारा, आपने खाना खाया वो पच रहा है, अपने सब चीजें आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना। देयर इज सम शक्ति विच इज कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग। मिलियंस, हजारों, करोड़ों, असंख्य आपके अंदर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हर सेकंड में। कोई कीटाणु आ गया तो उसके लिए हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स उसको मारने के लिए तैयार है। अपने आप सब हो रहा है। आप तो अपना इतना भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि मैं एक क्षण के लिए एक हार्ट बीट रोक लूं और उसको दोबारा चला दूं। आप तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। वो जो कहते हैं ना, प्राण है तो शरीर जीवन है, प्राण निकल गए तो शरीर किसी काम का नहीं। तो प्राण आपका शरीर चला रहा है, और प्राण को कौन गति दे रहा है? तो प्राण से सूक्ष्म क्या है? अभी हमने देखा है, आज के भी इस सेशन में हमने देखा, किससे सूक्ष्म है? मानस। इंद्रियों से सूक्ष्म है मानस। तो माइंड, हमारा जो मानस है, वो ये प्राणमय कोश को चला रहा है। तो जो हम 24 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें से 5 पंच तत्व हो गए, 5 तन मात्राएं हो गई, 10 हो गए, और फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मानस। ये हमारा मनोमय कोश हो गया 11 एलिमेंट्स का। तो 5 + 5 + 11 कितने हो गए? 21। अब मनोमय कोश को कौन चला रहा है? उसके ऊपर में है हमारा विज्ञानमय कोश। उसमें 2 एलिमेंट है, हमारा बुद्धि और अहंकार। अभी हमने अहंकार की जिक्र किया, तो उससे ऊपर अहंकार, और अहंकार के ऊपर में बुद्धि। ये हमारा विज्ञानमय कोश। तो अभी 21 + 2 23 23 एलिमेंट हो गए। 24वां एलिमेंट जो है वो है प्रकृति, जो प्राइमोर्डियल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, दैट कॉस्मोस। हम कहते हैं ना, शिवा एंड शक्ति। शिव is that consciousness and energy. So that's intelligence and energy. That consciousness and intelligence. इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे आप सूर्य की किरणों से सूर्य को अलग नहीं कर सकते, ऐसे शिवा एंड शक्ति। तो वो शक्ति, that energy, that cosmic energy is the 24th element. When all these elements come together, you are experiencing this life
on this earth. Now, इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, हमने बात किया आज के श्लोक में भी कि पंच तत्वों से सूक्ष्म है हमारा एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से सूक्ष्म है मनोमय कोश, मनोमय कोश से सूक्ष्म है हमारा बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है प्रकृति और दैट कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, जो हमारा आनंदमय कोश कहते हैं उसको। एक चीज ध्यान रख लें अगर आप, तो आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। और ये जितने भी आपको भय और जो भी दुविधा है वो सब खत्म हो जाएगी अगर ये चीज आपने समझ ली, आपने अपना स्ट्रक्चर समझ लिया, आप किससे बने हो। और आपका स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना सूक्ष्म सूक्ष्म आप चलते जाओगे उतना वो पावरफुल है, उतना शक्तिशाली है। तो हमें तो लगता है कि हम शरीर ही देख रहे हैं, सबसे शक्तिशाली शरीर है, पर शरीर तो आपका सबसे ज्यादा कमजोर है क्योंकि सबसे ज्यादा स्थूल है। आपको शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राणमय कोश। प्राणमय प्राणों को कौन कंट्रोल कर रहा है? उससे सूक्ष्म जो है वो मानस। मानस को कौन कंट्रोल कर रहा है? उससे सूक्ष्म जो है आपका अहंकार और बुद्धि, और उसको सूक्ष्म, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एनर्जी, दैट विच इज रनिंग दिस यूनिवर्स एंड दैट कॉन्शियसनेस। अगर ये आपने, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, अगर ये आपके समझ में आ गई, तो जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये हायरार्की को बीच में गड़बड़ कर देते हैं, इस हायरार्की में गड़बड़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मनोमय कोश जो हमारा उसको इमोशनल बॉडी कह लीजिए, उसको इतना ज्यादा हम इमोशनल टर्मोइल अपना पैदा कर लेते हैं, विषय उसको बड़ा कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ, जो आत्मा, जो एनर्जी से जो हमारा लिंक है वो कट जाता है, हम काट देते हैं। जो एनर्जी फ्लो कॉस्मोस से हमारे को होना चाहिए, हम वहां काट देते हैं। अपना ईगो कॉन्शियसनेस हमने जैसे इन्फ्लेट कर लिया, जब हमारा ईगो कॉन्शियसनेस बड़ा हो गया तो हमने अपना प्रभु से, उस कॉन्शियसनेस से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। तो आपको तो फिर शक्ति मिलेगी कहां से? उसी लिए सारे दुख, दर्द, रोग, मानसिक समस्याएं, ये सारी इसी से उपजती है। ये केवल एक कारण, जिस दिन हमने अपने अहंकार को थोड़ा कम कर लिया और ईश्वर से हमने अपनी लिंक बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? भक्ति, ईश्वर पे समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये तीन चीजें अगर हम अपने जीवन में, कि प्रभु जो आपने दिया, जैसा दिया, अच्छा दिया, आप अच्छा ही करोगे मेरे लिए, आप ही चलाने वाले हो मेरे, दैट इज रियलिटी। सो जब आपने इस चीज को समझ लिया, आप धीरे धीरे आप यकीन मानिए, ये सारी समस्याएं, डर किसको लगता है? भय किसको लगता है? आत्मा को भय नहीं लगता। भय हमारे अहंकार, ये ईगो कॉन्शियसनेस है। सबसे ज्यादा भय, हर तरह का भय उस ईगो कॉन्शियसनेस में लगेगा, चाहे वो मृत्यु का भय हो, या किसी से बिछड़ने का भय हो, कि कुछ चीज में फेल होने का भय हो, या लोग क्या कहेंगे उसका भय हो, कोई भी चीज हो, वो सब ईगो कॉन्शियसनेस, उस अहंकार की प्रवृत्ति है। बुरा किसको लगता है? किसी ने आपको गाली दी, बुरा किसको लगा? अहंकार को। तो जितना हमारा अहंकार की कॉन्शियसनेस है वो जितना बढ़ा के रखेंगे, उतना हमारे को डर लगेगा, उतना हमारे को चोट लगेगी, उतना हमको बुरा लगेगा, और उसकी वजह से हम अपना मेंटल इमोशनल टर्मोइल हमारा बढ़ता रहेगा। हमारे अंदर एंगर, जेलसी, हेटरेड, ये सारी चीजें सब उसी में हम जलते रहेंगे, और उससे फिर हमारा संबंध जो है प्रभु के साथ, ईश्वरीय सत्ता के साथ कमजोर पड़ गया। तो बड़ा सीधा इलाज है, श्रद्धा, भक्ति और परम विश्वास। जैसे जैसे हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे आपकी ये सारी समस्याएं अपने आप स्वतः
ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये तो अकाट सत्य मैं बता रहा हूं आपको, जो कि प्रभु ने बताया है। ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये तो कथन हमारे शास्त्रों का है, अकाट है। जैसे आप ऊपर छत से जब कूदेंगे ना, तो आप नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए ये भी प्रकृति का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने अपनी जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, डिविनिटी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया, आपके जीवन की तमाम समस्याएं सब धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगी। आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। हमारे तमाम पुराने कर्म डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये सब प्रभु का जितना, अब आप केवल एक ही काम करना है आपको, प्रभु के साथ में अपनी लिंक बढ़ाना है, अपनी भक्ति बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ाना है। बस यही एक काम करना है मनीष जी, मेरे हिसाब से यही है। और आप, हो सकता है शायद मैंने आपको जवाब दिया, आपके प्रश्न का उत्तर। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। अच्छा मैडम, बनानी मैडम, आप अनम्यूट प्लीज। Hello, sir. Hello, Guruji. Good evening. It was wonderful. It was a wonderful explanation you just now gave, which actually partially answered my question. It was how you feel in unison with the Supreme Consciousness. Yeah. And how do you explain today that the moment we get even for a fraction of a second, we can feel that consciousness, which is the supreme consciousness, that is the realization of our existence. And my second question is, does it come with practice? I mean, I'm impatient. I want to know how or how long or when we can get it, and more and more. And so it partially answered my question, because right now you explained the Shraddha, the concept of Bhakti, Shraddha, and our total surrender to the Lord. Right. That helps us to, basically, is it so that we always have to walk in the levels of higher and higher consciousness? Is it so? Yes, because see, we can explain it in many ways. Like, the law of vibration. Like vibration attracts like vibration. So when you are vibrating in higher consciousness of love, of gratitude, of gratefulness, then you are attracting circumstances and situations in life which will keep you in that state of bliss, of love, of gratefulness. So things will start happening in your life for which you will continue to be grateful. अरे ये भी हो गया मेरे साथ, भगवान प्रभु आप धन्यवाद, अनेक धन्यवाद. So you will continue, keep giving thanks. Things will start happening in your life. This is the state of living in miracles. So this is one way of explaining of higher consciousness. Now, what was your question? That how to do it? How to achieve bhakti, or how to become more nearer to God? Is that your question? Yes. Okay, very, very nice. So now you tell me one thing. There are some people you meet whom you want to become immediately friendly with. You get friendly with some people, and with some people you don't feel, even to talk later, or you don't feel friendly. Isn't it true? We all experience this. Why? Because their thought process, their thinking process, there is some kind of alignment. We think alike. Yeah, we have got some common likes. We have got some common dislike. वही तो कसौटी है ना. That is how we become friends. हम किसी के close आ जाते हैं. जो हम बोलते हैं कि soulmate. Soulmate is a perfect mate who has the same likes and dislike as you. So if you meet somebody who has got 100% same like and dislike like you will become a soulmate. आपको बिल्कुल सच्चा प्यार रहेगा उसके साथ. यही हमारा
हमारे जो इस ड्युअलिटी में हमारा अट्रैक्शन जो है, हमारा एफिनिटी जो है, उसी के साथ बढ़ता है. नाउ इफ यू एग्री ऑन दिस, तो जब ईश्वर के साथ में हाउ कैन वी increase our affinity to God? It is very simple now. See, God will not come, he will not make himself as what you are. We have to become godlike. The more and more we become godlike, भगवान के गुणों, जो भगवान के गुण हैं, ईश्वर के जो गुण हैं, अनकंडीशनल लव, कंपैशन, समस्त प्रकृति के लिए, zero ego consciousness. There is no ego consciousness. That that peace, that oneness, वो जो ईश्वर के गुण हैं, सत्य, अहिंसा. Ahimsa is non-injury, that feeling of non-harming anybody, even in your thoughts or words or deeds. Being follow the path of truthfulness, non-stealing. तो जितने भी महर्षि पतंजलि ने यम बताए, 5 यम, वो basically those are somewhere related to the qualities of God. So when you start developing those qualities, God-like qualities, you will be automatically lifted, drawn towards that. वो तो अट्रैक्शन है, वो वाइब्रेशन आपको खींच लेगा. इसीलिए कहते हैं, जैसे आपने अपना हृदय निर्मल शुद्ध करना शुरू कर दिया, the moment you start cleaning your inner purity, of thought, word and deeds, शुद्ध मन, निर्मल मन, the moment you start reaching that state, तो ईश्वर आपको अपने तरफ खींच ही लेगा. You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. आपको केवल अपना हृदय शुद्ध करना है, साफ करना है, बस. That is the only requirement, and you will start going up in a higher vibration. So यही एक तरीका है. Hope I have answered you, madam. Yes. Thank you so much, Guruji. Thank you. Thank you. Anju ji, please, you can unmute. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sorry, sir, I missed the class last Saturday. I was stuck. It's all sir, divine. सर, आज आपने जैसे बात शिव शक्ति की बात की और सोलमेट की भी बात की, तो सर ऐसा भी कहते हैं कि जैसे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जिसमें कहते हैं कि एक सोल जो है 2 एनर्जीज में स्प्लिट हो जाती है. क्या ये ट्रूथ है? हो सकता है. क्योंकि आत्मा जब अविनाशी है, और अगर भगवत गीता को पढ़े तो नहीं समझ, ये चीज सही नहीं लगती है. पर अगर देखा जाए तो जैसे राधा कृष्ण भी कहते हैं कि एक हिसाब से ट्विन फ्लेम एनर्जी है, और शिव शक्ति भी कहते हैं एक हिसाब से ट्विन फ्लेम एनर्जी. हाँ, बिल्कुल, सब एक ही. एक आत्मा 2 जगह डिवाइड होकर के एक में मैस्कुलिन एनर्जी हो, एक में फेमिनिन एनर्जी हो, ये कितना ट्रूथ? एक्चुअली क्या है, ये मैस्कुलिन फेमिनिन का जो कंसेप्ट आता है, वो जैसे ही एक्चुअली एक कॉन्शियसनेस है, जैसे ही वो एक कॉन्शियसनेस ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी टाइम पे वो ड्युअलिटी, जैसे ही वो उसमें आ गए ना, बुद्धि के और उसके सेंस में आ गए 3 गुणों का, जहां सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का जहां प्रभाव शुरू हुआ, तो ड्युअलिटी में आ गया. सो जैसे ही वो ड्युअलिटी के वर्ल्ड में आ गए, इन द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हो गया, तो ये शिवा शक्ति हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी. एंड ये तो इसीलिए ये कहते हैं ना कि जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार में स्थित हैं मां कुंडलनी, और सहस्त्रधार में शिव. तो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी. जब आप हाई 2 वायर को ले लेते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के 2 वायर आप पास में ले जाइए, दोनों के बीच में स्पार्क निकलेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों के बीच में. ऐसे ही हमारे मूलाधार और सहस्त्रधार के बीच देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो जब
हमारा जीवन में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। जब ये शक्ति सहस्त्र में चली जाए, मूलाधार से कुंडलनी, तो देन इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तब यू रियलाइज दैट देयर इज वन। तब तक क्या होता है, तब तक हमें ड्युअलिटी का बोध है, सुख है, दुख है, आनंद है, दुख है, हर तरह के ड्युअलिटी का बोध है। तो उसमें हमें ड्युअलिटी के बोध में रहते हैं। जैसे ही आप सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंचे, तब सब एक है। उस लेवल के बाद में इट इज एक्चुअली वन, एक ही ट्रूथ है। दैट इज व्हाट आज भी हमने देखा, सच्चिदानंद। सर ये जैसे हम लोगों ने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जैसे मैंने भी काफी सारी स्टडी की इस पर, काफी टाइम से अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। बट मैंने ये चीज देखी कि जैसे इसमें कहते हैं आत्मा को दो भाग में बांट दिया जाता है। उसमें भले एक पर्सन, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी है, उसके अंदर एनर्जीज दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक एनर्जी हमेशा हाई रहती है। और वही चीज जो दूसरे बंदे में होती है, उसमें सेकंड एनर्जी हाई पे रहती है। जैसे एक में मैस्कुलिन रहती है, एक में फेमिनिन रहती है। और उनके यूनियन, उनका मतलब जो होता है पर्पस, उनका कोई लाइफ पर्पस होता है जिसके लिए उनको अर्थ पे भेजा जाता है। सही है। हर किसी को अपना लाइफ पर्पस फाइंड करना होता है। वो एट अ टाइम अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे रीच करते हैं जहाँ पे उनको यूनियन में आकर के अपना लाइफ पर्पस पूरा करना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज सर कितनी ट्रूथ है कि जैसे मतलब आत्मा कैसे स्प्लिट हो सकती है, दो एनर्जी में कैसे बढ़ सकती है, और एक का मिररिंग हमेशा दूसरे से होता है। वो मतलब वो कंसेप्ट ऐसे समझने वाली है कि स्प्लिट का सेंस वो एक अनुभव है सब एक ही। हम उसको, जैसे हमारा अहंकार, मतलब जैसे ही हम उस ड्युअलिटी मोड में आ गए, तो अनुभव हो गया कि हम सेपरेट हैं। सेपरेशन वहीं पर अनुभव होता है, एक्चुअली सेपरेट है नहीं। यही भगवत गीता में भी बोला है। तो कोई, मतलब हम लोग लगता है कि स्प्लिट हो गया या कुछ हो गया, ये अनुभव की बात है। ये अनुभव कहीं पर हमारा अनुभव अगर मोर मैस्कुलिन है, तो हमें उस तरह के अनुभव होंगे। कहीं पर तो क्योंकि हमें फिर फेमिनिन शक्ति का तरफ अट्रैक्शन रहता है। ऐसी अगर फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, उसको मेल एनर्जी के तरफ अट्रैक्ट, ये एक नेचुरल वो बना दिया। और किसी को इवन हमारी बॉडी में ही देख लीजिए आप, तो ये तो आपने बोला कि दो अलग अलग आत्माएं और शरीर है। एक में मैस्कुलिन गुण हो गए ज्यादा, एक में फेमिनिन गुण हो गए। भले ही उनका लिंग क्या हो, वो मैं इससे नहीं बात कर रहा, मतलब उनकी प्रवृत्ति या जो आत्मा की अनुभूति है, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गई, तो उनके आपस में अट्रैक्शन हो, स्वतः हो जाएगा। ये जो एक बहुत ही नेचुरल चीज है। तो ये ड्युअलिटी के मोड में है ही है। तो मैं उसी का बता रहा था, उसी का हमारे शरीर में भी स्वयं वो ही है कि एक एंड पे फेमिनिन एनर्जी है और एक एंड पे सहजदार में मैस्कुलिन एनर्जी है। तो हमारा जीवन चक्र भी केवल, हमारा लक्ष्य जो है वो दोनों को मिलाने का ही है। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन। तो शक्ति जैसे मिल जाएगी, मैस्कुलिन फेमिनिन एक हो गया, देन दे रियलाइज कि हाँ वो ड्युअलिटी से बाहर निकल गए। देन तदा दृष्टु सर्वभगवान, तब हमको लगेगा कि हाँ हम एक ही कॉन्शियसनेस, वो सिंगल कॉन्शियसनेस, वन कॉन्शियसनेस, वो लास्ट, दैट इज अल्टीमेट। उस लेवल तक आने का रास्ता क्या है? बस यही है, आप ईश्वर से, वो उस वन कॉन्शियसनेस से हमारा लिंक स्ट्रॉन्ग करने का ये है कि हम उसकी तरह अपना इनर जो कैरेक्टर है, हमारा भावनाएं हैं, हमारा जो इनर प्योरिटी है, वो गॉड लाइक बनाना शुरू करें। शुद्ध मन, निर्मल मन, जितना हम वो निर्मल होते जाएंगे, उतना हम उसकी तरफ चलते जाएंगे, और उतनी जल्दी हमारी ये कुंडलनी शक्ति जागृत होती जाएगी। ये बड़ा क्लियर है सर मतलब जितनी ज्यादा हम लोग कनेक्टिविटी गॉड से फील करते हैं, जितनी हाँ। ज्यादा उस यस एनर्जी को यस फील करते हैं, उतना यस ज्यादा उस वननेस में आते हैं। यस यस यस, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू। सर बाकी वो पूछना था कि वो नेक्स्ट टाइम अट्यूनमेंट कब होगा रेकी 2 का? मैं कराता हूँ, आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay. Now, Shalab, okay, please.
You can unmute. Hey, good day, sir. Good evening. सर एक मेरा स्मॉल क्वेरी था सर. हाँ. लाइक सर अभी जैसे आज के डिस्कशन में आपने बताया, बट सर उसमें देन जैसे दो तरह के लोग होते हैं. एक तो इंसान उसको कितना भी दुख आए वो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, हमेशा अच्छा करता है, जैसे आपने बताया डिवाइन लाइक क्वालिटीज, तो वो हो गया. एंड दूसरा जैसा नेचर है सर, वो उसको थोड़ी तकलीफ होगी या दुख होगा तो ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग या रिस्पॉन्डिंग, बट वो बोल देता है. तो ये दोनों तरीके के ऐसे नेचर के लोग होते हैं सर. तो हाउ वी कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ये सेकंड ऐसे नेचर वाले में से, मतलब जो भी दिक्कत हो सर या दुख हो, किसी ने कुछ कह दिया, कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दिया, तो उसको कैसे सर, मतलब बोलना नहीं है ज्यादा बट स्टिल अच्छे कर्म करके पॉजिटिविटी करते रहें, ये मेरा प्रश्न था सर. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू. चलो, तो हम बेसिक पे आ जाते हैं फिर से कि हमें बुरा क्यों लगता है. कोई बोलता भी है, हम इंसान है, मनुष्य है, यस, थोड़ा लगेगा. किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है. किसी को इतना बुरा लग जाता है कि आपने अगर छोटे सी भी बात कह दी तो वो तो, अगर उसके पास में पिस्टल हुई तो वो तो निकाल के आपको शूट कर देगा. जो क्रिमिनल माइंड होता है वो तो जरा सी भी चीज बर्दाश्त के बाहर, एंड ही जस्टिफाइज, वो जस्टिफाइड है उसके लिए. उसके आप उसको पूछिए, अरे मेरे को कैसे, उसकी मजाल, मेरे को उसने ऐसा बोला, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा. एंड ही जस्टिफाइड दैट. ये एक कॉन्शियसनेस है, एक लेवल पर, जहां पर हमारा इन्फ्लेटेड ईगो, कैसे मेरे को. और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, उसको आप गाली दे दीजिए, ही विल से कि भाई ठीक है, आप जो सामान लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट, वो मैं आपको वापस करता हूं. कोई भी लेश मात्र भी उनके हृदय में कोई बुरा लगा ही नहीं उनको. सो ये दो एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, एक यहां पर और एक बिल्कुल ऊपर. जैसे रावण और भगवान राम, ईगो कॉन्शियसनेस, अहंकार. तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे असुर प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स में जो भी दिखाई गई है, महिषासुर हो या रावण हो या कोई भी असुर हो, उनमें एक चीज कॉमन है कि वो अहंकार भरपूर, मद. और भगवान की कितनी एक गॉड लाइक क्वालिटीज अलग हैं. तो अभी मैं बता रहा था कि हमें खाली केवल इतना सही करना है कि हमें अपने क्वालिटीज जो है वो धीरे धीरे प्रभु की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी है. उनके प्रति भक्ति शुरू कर दो, उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा. हे प्रभु, हे. तो हम जितना प्रभु की भक्ति में लीन होते जाएंगे, हमारा मन, हमारा हृदय जितना निर्मल होता जाएगा, उतना ही हम उनके करीब होते जाएंगे, उतना ही हमारी बुरा मानने की प्रवृत्ति खत्म होती जाएगी. फिर हमें बुरा भी नहीं लगेगा. नहीं, ठीक है, ये भी तो प्रभु का ही जीव है. हो सकता है वो बेचारे को कोई कष्ट हो, कुछ हो उसके, तो उसकी वजह से उसके मुंह से गाली निकल गई हो मेरे लिए. पर भगवान, लॉर्ड क्राइस्ट, उनको सूली पे चटका दिया, फिर भी उन्होंने कहा, ए प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. सो जो उनके दुश्मन है उनको भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. दैट इज दैट कॉन्शियसनेस. सो वो धीरे धीरे अब जो उस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो ये स्वतः धीरे धीरे सब चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी. फिर ईश्वर हमको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा. फिर हमारे तमाम विकार धीरे धीरे खत्म होने शुरू होंगे. हमारे तमाम कर्म कटने शुरू हो जाएंगे. जिन, अगर नॉर्मल वे में बहुत से कर्मों का हमको भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जब हमने कॉन्शियसनेस अपनी थोड़ा रेस कर ली, प्रभु के समीप आ गए, तो बहुत सारे पाप हमारे वैसे ही धुल गए. ये तो प्रभु ने भी बोला है. तो वो धीरे धीरे हो जाएगा. खाली हमको केवल अपना कॉन्शियसनेस
प्योर करना है, शुद्ध मन निर्मल मन करते जाना है धीरे धीरे, यही प्रोसेस है बस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शिवा। So thank you everyone, thank you all of you divine souls. So we'll take leave and we will meet next Saturday.